اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجیری صرف پریگننٹ لیڈیز کے لیے بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہر عمر کے افراد کے لیے ایسا سورس ہیں جو پروٹین اور نیوٹریشن سے بھرپور ہیں. آج کے ملاوٹی دور میں یہ ایک بہترین بغیر کوئی پریزرویٹیوز کے آرگینک اور ہیلدیسٹ فوڈ سپلیمنٹ ہے. دس از سوٹیبل فار آل ایجز اینڈ فار آل سیزنس. ہر عمر کے لوگ فیض پستہ پنجیری ہر موسم میں کھا سکتے ہیں. فیض پستہ پنجیری an organic, versatile and healthy food supplement. فیض پستہ پنجیری کا یہ نایاب تحفہ ایک کال پر آپ کے گھر پر آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید شاہ کے ساتھ ARTV پر خبرنامہ. 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کو 29 سال مکمل ہو گئے اور مسلم تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے ہر سال یوم سیاہ کے ذریعے احتجاج کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ مسلم تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے یوم سیاہ کے موقع پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا. اس ضمن میں آج سعید آباد اجالے شاہ صاحب درگاہ مسجد بعد نماز ظہر دعوت اسلامی ہند کی جانب سے جلسے عام کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی. اپنے اندر سے یہ ڈر نکالنا ہوگا. جب تک یہ پولیس کا، جب تک یہ حکومت کا، جب تک یہ دوسرے لوگوں کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھیں گے، جب تک بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا جو ہمارا مشن ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے. اور صرف اللہ کا خوف اٹھا جب جا کے بابری مسجد کو آباد کر سکتے. لوگ بولے کہ بابری مسجد کو بھول جاؤ، ایک واقعہ ہوا، چھوڑ دو اس کو. ارے اللہ تعالیٰ جس کو ظلم عظیم بدلا، اللہ جس کی فطرت معاف کرنا، درگزر کرنا فطرت ہے، کیا ہم اللہ سے زیادہ معاف کرنے والے بنتے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ بدلا کہ ہمارے قائدین ایسے بڑے ہو گئے کہ اللہ جس کو معاف نہیں کر سکتا انہیں معاف کر، جس کو معاف کرنا ہے اس کو معاف نہیں کر رہے. اگر مسجد کا کوئی خطیب اگر ان کے مدرسے کے خلاف ہو دیا، ان کی جماعت کے خلاف ہو دیا، خالی ان کی پالیسی اور وہ جماعت کی پالیسی میں تھوڑی مخالفت آئی، ڈٹ کے اس کے خلاف میں بولنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن جب غیر مسلموں کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے ڈر کے سہم کے زندگی گزار رہے، سہم کے زندگی گزارے تو 2 سال زیادہ زندگی گزار سکتے تو سہم کے زندگی گزارے. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر ڈر کے زندگی گزارے تو 2 سال ایکسٹرا آپ کو ملنے والے ہیں تو ضرور ڈر کے گزاریے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ایک لمحہ جو ہے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا. ہماری موت کا وقت لکھا ہوا مقرر ہے. جس دن، جس وقت، جس طریقے سے ہماری موت آنی ہے وہ آنا ضرور ہے. کوئی جو ہے ہمارے کو ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم جو ہے کچھ زیادہ جی نہیں سکتے. سامعین کرام، یہ دل سے ڈر اور خوف نکالنا ہوگا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا. ہر ظلم کے خلاف. صرف بابری مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہندوستان میں ہر روز مسلمانوں پر نہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی. میں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ میرے بعد بھی ایک مخرج ہیں کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں. لیکن یہاں پر رکھنے والے مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ ہر روز نئے نئے مسائل پیدا. جس دل میں مرنے کی تڑپ ہو صداقت کے لیے، جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر. پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان و مستعار، اسی خاکستر سے اپنا جہاں پیدا کر. یہ یوم سیاہ اور بابری مسجد کے ہر 6 دسمبر پر یقینی طور پر جمع ہونا اہمیت کا حامل ضرور ہے،
क्योंकि मुर्दों के शहर और मुर्दों की बस्ती में हम जिंदगी गुजारने का हुनर ढूंढ रहे हैं। माफ करना, बात थोड़ा सख्त अल्फाज कह रहा हूं कि मुर्दों की बस्ती और मुर्दों के शहर हम जिंदगी का हुनर, समझिए कि जिंदगी गुजारने का हुनर ढूंढ रहे हैं। बहरहाल कुछ तहरीरें आई थी जो मायूसी को अपने अंदर लिपेटे हुए। याद रखिए कि हमको मायूस होना नहीं और बाबरी मस्जिद के उन्वान पर 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर 1992 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 3000 मुस्लिम नौजवान पुलिस की फायरिंग से शहीद हुए। तो हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। और बहरहाल जिस सरजमीन पर हम हैं, यकीनी तौर पर बहुत से समझिए कि तनासान लोग हैं। अभी जैसे एडवोकेट खालिद साहब ने कहा कि भाई एक बात क्लैरिटी के साथ हो जानी चाहिए, जो मैं परसों नामूस रिसालत के जलसे में भी यही ये बात की कि एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि भाई तुमको कोर्ट का फैसला मंजूर है तो जाओ हुकूमत के ऐवानों में और हुकूमत के समझिए के दर पर जाकर उनके पांव पड़ो। हमको कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, हमको अल्लाह का फैसला मंजूर है। और अल्लाह का ये ऐलान है कि वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बाबरी मस्जिद हक थी, हक है और वहां से अज़ाब बुलंद। ये ईमान के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए कि बाबरी मस्जिद से अज़ाब खुदा की कसम यकीनी तौर पर बुलंद हो, उसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट और शक व शुबा है, पूरी ताकत से बुलंद नहीं करते कि चार मीनार की मंदिर इलीगल है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है और अब तो पेडिस्ट्रियन वहां पर बना दिया गया है। पैदल रास्ता तो ये तो एक साजिश के तहत बनाया गया है कि मंदिर के लिए समझिए कि साहब एक ग्राउंड, फ्री ग्राउंड मुहैया किया जाए। और वहां पर अब तो समझिए कि वीआईपी, होम मिनिस्टर्स सब आना शुरू हो गए, हत्ता कि गवर्नर भी आ रहे, गवर्नर ऑफ स्टेट भी उस मंदिर को आ रहे, जबकि इलीगल मंदिर है। तो मुसलमानों को पूरी ताकत से बात करनी चाहिए कि साहब ये चार मीनार की मंदिर इलीगल है, और होते होते चार मीनार आधा इधर का हिस्सा तो कब्जा ही हो गया। आप जाकर कभी गौर से देखें। और फिर वहां जो तमाशे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ये साजिश का एक हिस्सा है। उस मंदिर को एक मरकजी मकाम बनाने की कोशिश की जा रही है और हैदराबाद की तारीख और तहजीब से छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये इलीगल है, लेकिन वो लोग जो समझे कि फोरमों में बैठे हुए हैं वो आवाज इस पर नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी के पूरे सोशल मीडिया पर हैदराबाद नहीं लिखा जाता, भाग्यनगर लिखा जाता। हम जानते हमारे शहर में खुद हमारे सामने चैलेंज कि साहब ये शहर और इसकी तहजीब और इसकी तमद्दुन पर हम बड़ा नाश करते, लेकिन हैदराबाद के नाम को भाग्यनगर लिखा जाता है और लफ्ज चार मीनार भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, भाग्यनगर मंदिर इस्तेमाल हो रहा है। अगर चार मीनार का पता देना, आप उठाकर देखिए, उनके पोस्टर उठाकर देखिए, उनके बैनर्स देखिए, उनका सोशल मीडिया देखिए, तो ये समझिए कि साजिश है। तो भाई मिथुरा और काशी अगर इलीगल है तो फिर आप समझिए कि और डिफेंसिव होकर यहां बात करिए कि चार मीनार की मंदिर इलीगल, खुद ये घुटनों पर आएंगे यहां। आप बात तो करिए पूरी ताकत से। दरअसल हम ये है कि बहुत आराम का दीन तलाश कर रहे हैं, हम सुकून और इत्मीनान का दीन हम तलाश कर रहे हैं। और समझिए कि साहब हमने दुआया इज्तिमात रख लिए। मैं सलाम करता हूं कल सईदाबाद की हमारी माँ और बहनों कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की, लेकिन हमारा हाल
बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े जब उलमा की सफ के हराबुल दस्ते के लोगों ने मुझे ये बात कही थी कि मुश्ताक मलिक साहब, बाबरी मस्जिद हमारे लिए लॉस्ट केस है, बाबरी मस्जिद हमारे लिए एक हारा हुआ केस है। तो मैंने उस वक्त ही कहा कि मौलाना ये हारा हुआ केस नहीं है, मेरा ये ईमान है कि मस्जिद से अज़ाएं बुलंद होगी, चाहे मस्जिद शहीद कर दी जाए, चाहे मंदिर बना दिया जाए। और यही समझिए कि तौहीद खालिस और गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उस मंदिर को उखाड़ कर फेंकेंगे और वहां मस्जिद तामीर बनाएंगे बनाएंगे बाबरी मस्जिद बनाएंगे 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 बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये यकीन के साथ इस मुल्क में हम जिंदा रहे, इस यकीन के साथ कि मस्जिद दोबारा तामीर होगी। हम अगर ये कहें कि साहब मैं माफ करना, मौलाना नसीरुद्दीन साहब के फर्जंद मुफीद को मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि भाई एक मुजाहिद का बेटा आज मायूसी की बात कैसे कर रहा है कि बाबरी मस्जिद को वो जियाले मुसलमान नहीं मिले। खुदा की कसम बहुत जियाले मुसलमान बाबरी मस्जिद को मिले। मैंने जून 92 दिसंबर को मस्जिद शहीद हुई है और मैं यूपी में समझिए कि जून और जुलाई में यूपी में था, 25 डिस्ट्रिक्ट मैंने देखा। मुसलमान तो अपना खून देने तैयार थे, मुसलमान समझिए कि कार सेवकों के बढ़ते हुए खतरों को रोकने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो जो जिम्मेदार आशियानों में बैठे उन्होंने मुसलमानों के बढ़ते हुए खतरों को रोका। उन्होंने रोका, कौम बांझ नहीं है। और बकौल समझे किसी शायर के कि तुम अल्लाह की फिक्र न कर खुद तीर के दरिया पार। मैं नौजवानों से कहूंगा कि अल्लाह की फिक्र न कर खुद तीर के दरिया पार कर। कौम तो उस वक्त भी मस्जिद बचा ले सकती थी, कौम बिल्कुल बचाने के लिए मस्जिद तैयार थी, लेकिन मैं उस तारीख में नहीं जाऊंगा। जरा ये 6 दिसंबर से आगे भी हैदराबाद के मुसलमान को सोचना चाहिए। मैं यही सोच रहा था सुबह से, और फिर यहाँ आए बाद कुछ तकारीर ने मुझे और समझिए कि झिझोड़ दिया कि हमको 6 दिसंबर से आगे भी कुछ सोचना चाहिए। ये आज 6 दिसंबर है और बाबरी मस्जिद की शहादत का 29वां साल है और मुसलमानों ने आज यूम सियाह भी मनाया और यहाँ उजाले शाह में जलसा भी बहरहाल मुनक्कद हुआ वहदत इस्लामी की जानिब से। और कुछ गयूर मुसलमानों ने अपनी दुकानात और कारोबार को आज बंद रखा है। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके इस जज्बे को, और ये यकीन के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद से अज़ाएं बुलंद होगी, चाहे कोर्ट के फ़ैसले कुछ भी आ जाए। कोर्ट का फ़ैसला तो हमारे हक़ में है, क्योंकि कोर्ट ने 1949 में मंदिर को मूर्ति को ला के रखने को क्राइम कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में मस्जिद की शहादत को भी जुर्म करार दिया है। तो ये 2 एविडेंसेस ऐसे हैं जो मस्जिद को समझिए कि साहब मस्जिद के होने का ऐलान खुद सुप्रीम कोर्ट का है। और दूसरी जो अहम समझिए कि बात है कि आज रामचंद्र जी की बात करने वाले रामचंद्र जी की जाए पैदाइश और उनके पैदा होने के साल को ज़रा दुनिया को बता दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फ़ैसले में कहा है कि रामचंद्र जी कब पैदा हुए और उनकी पैदाइश का मकाम कोई डिफ़ाइन नहीं कर सका है और कोई समझिए उसका सबूत नहीं दिया है। हम सबूत देते हैं कि बाबरी मस्जिद 1528 में बनी, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम किया है। तो ये कि रामचंद्र जी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये समझिए कि आज रामचंद्र जी के मानने वाले भी नहीं बता सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर एक क्वेश्चन मार्क किया है
इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह बाबरी मस्जिद रहेगी, क्योंकि अल्लाह का क़ानून है कि जहाँ मस्जिद बन जाती है, चाहे वो उसकी शक्ल कुछ भी बाद में बना ली जाए, मस्जिद की ज़मीन क़यामत तक के लिए मस्जिद रहेगी और ग़ुलामान मुस्तफ़ा वहाँ इंशाअल्लाह सजदा करेंगे। तारीख़ इसको भी देखेगी इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पंजेरी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाई जाती है और खाई जाती है। ऐसा नहीं है। ये हर उम्र के अफराद के लिए ऐसा सोर्स है जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। आज के मिलावटी दौर में ये एक बेहतरीन, बगैर कोई प्रिजर्वेटिव्स के, ऑर्गेनिक और हेल्दीएस्ट फूड सप्लीमेंट है। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल सीजन्स। हर उम्र के लोग फैज़ पिस्ता पंजेरी हर मौसम में खा सकते हैं। फैज़ पिस्ता पंजेरी एन ऑर्गेनिक, वर्सेटाइल एंड हेल्दी फूड सप्लीमेंट। फैज़ पिस्ता पंजेरी का ये नायाब तोहफा एक कॉल पर